Part 2. Today we will discuss a template to describe a place for IELTS speaking part 2. So as you know that there are different types of topics that may be asked in your cue card. Okay, one of those topics may be related to a place. Okay, for example, describe a place that is special to you. Okay, and whenever you are talking about any place, so there are some specific points that can really help you to describe your favorite place. Okay, so first of all you are supposed to introduce the place, the introduction. ठीक है, so you should name the place. आपने उस जगह का नाम बताने की कोशिश करनी है. ठीक है, and the second is just try to describe its location as well. ठीक है, आप उस जगह की location बताएं. And after location also describe its physical description. ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ स्पेशल फीचर्स, कोई चीज़ें उसमें जो बाकियों से हटकर हैं उनको बेटे आपको बताने की कोशिश आपने करनी है. ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम हाउ you are connected to that place, so how is your personal connection with that place. ठीक है, तो उसके साथ आपने ये बताने की कोशिश करनी है. Then you have to conclude. So in order to discuss this in detail, so we would just focus on example first. Suppose you are supposed to describe a place that you love, so you can say that the place I'd like to describe is my grandparents' village. The place I'd like to describe is Murree. The place I would like to describe is Mohenjo-daro and Harappa. ठीक है, so the place I want to describe is Lahore. So you can take any place from your own life or any historical place as well. So you have both the options. But keep in mind that when you select any famous place, so you should know about that place because everyone knows about him. But if you choose about your grandparents' village, so no one knows about your grandparents' village. So you can name Murree as your grandparents' village as well, and you can also describe that. Okay, so first of all you will have to name that place. Okay, next, it's located in the countryside or is it located in urban area, about an hour's drive from the city. कि ये देहाती इलाके में है, 1 घंटा लगता है शहर से वहाँ तक पहुँचते हुए. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, अगर कोई आप उस हिसाब से बता रहे हैं, या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कागान, सवात टाइप ऑफ प्लेसेस, सो यू कैन टॉक अबाउट देयर प्रोविंस, यू कैन टॉक अबाउट देयर लोकेशन एज वेल. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल लाहौर, इट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ Punjab. Okay, and you can also say that it's 1 hour's drive from my home. तो अब आप बता सकते हैं मेरे घर से ये 1 घंटे की मुसाफत पर है. So you can say anything. This place is surrounded by. Now we are talking about the next point. The first point that we did, that the place I would like to describe was introduction. ठीक है, तो पहली लाइन में हमने क्या करवाया, introduction. दूसरी लाइन में हमने क्या बताई है, लोकेशन, कि वो किस जगह पर मौजूद है. ठीक है, द नंबर 3 इज, जो तीसरी चीज़ हमने बतानी है वो क्या है, दैट इज़ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कि वहाँ की नेचुरल सीनरी जो बेटे है वो किस किस्म की है. ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे. तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स हैं बेटे, जो कि जनरल वर्ड्स हैं, आप हर जगह पर उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या वर्ड यूज किए गए, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय लश ग्रीन फील्ड्स. सरसब्जो शादाब वहाँ पर खेत हैं. रोलिंग हिल्स, ठीक है, बल खाती हुई पहाड़ियाँ हैं. ए सीरीन लेक, एक इंतहाई पुरसुकून झील. विद ट्रेडिशनल हाउसेज, रवायती घर. एंड नैरो स्ट्रीट्स, और तंग गलियां. तो ये तो इतना गोलमोल सा फिक्रा है, हर जगह पर, चाहे नानी का विलेज हो या दादी का, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या कोई भी हो, तो आप बेटे इसको एज इट इज़ याद करके आप लिख सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं. ठीक है, फिर एनी स्पेशल थिंग अबाउट दैट प्लेस, तो आप कह सकते हैं व्हाट मेक्स दिस प्लेस स्पेशल इज इट्स पीसफुल एटमॉस्फेयर. पुरसुकून माहौल है.
रिच हिस्ट्री, भाई इसकी अजीम तारीख है, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, और हम लोग ख़ानदानी तौर पर इस जगह के साथ अटैच है, मेरे दादाजी परदादाजी वो यहीं पर रहा करते थे, यहाँ आया करते थे। नेक्स्ट, you can also talk about how you feel, how you are connected to that place। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बताने लगे हम पर्सनल कनेक्शन, आपका उस जगह के साथ क्या पर्सनल कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू दिस प्लेस बिकॉज आई स्पेंट मैनी हैप्पी चाइल्डहुड वकेशंस, भाई बचपन की छुट्टियां वहां पे गुजारी हैं। देयर लर्नड वैल्यूएबल लेसन्स, इंतहाई काबिल कदर मैंने वहाँ पर इसबाक सीखे हैं, फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ननियाल से, एंड फॉर्म्ड लास्टिंग मेमोरीज विद माई फैमिली, और हमेशा रहने वाली यादें जो हैं मैंने वहाँ पर अपने ख़ानदान के साथ इकट्ठी की हैं। सो आई थिंक दिस इज़ आल्सो प्रिटी बेसिक टाइप ऑफ फार्मूला टाइप ऑफ लाइन एज वेल, तो आप इसको भी बेटा एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड पे आपने क्या बताना है कि कंक्लूड करें, ओवरऑल दिस प्लेस होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ी अहमियत है इसकी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स माई रूट्स एंड हेरिटेज। ठीक है, तो ये मेरे रूट्स को बताता है। तो आप बेटे ये जो बेसिक टेम्पलेट है इसको मैं सम अप कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले बेटे क्या करना है, पहले जगह का नाम बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर उसकी लोकेशन बताएं आप। ठीक है, फिर उससे मुतल्लिका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, लश ग्रीन, वहाँ पे ग्रासेस हैं, फील्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनको आप बता सकते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिर कोई स्पेशल फीचर्स, ऐसी चीज़ जो बाकी जगहों पर ना मिलती हो, या वो जगह जिस चीज़ के लिए मशहूर है ज़्यादा, तो कोई ख़ास और अहम फीचर्स। तो बेटे ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेशल फीचर्स। तो लेकिन उसमें ख़ास तौर पर आपने वो वर्ड भी तो यूज़ करना है ना, व्हाट मेक्स दिस प्लेस स्पेशल is its environment, what makes this special is its cultural heritage, what makes this place special is its location। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये भाई इसकी वजह से क्या है, अहम है। ठीक है, तो इसके साथ साथ बेटे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के साथ आपने बहुत अहम चीज़ है पर्सनल कनेक्शन इसके साथ बताना है कि आपका इसके साथ ताल्लुक क्या है। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है और आप कैसे जो है इसको डिटेल बताएंगे, तो आप कोई भी अपना वाकया भी इसमें ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फिर ओवरऑल आप बताएंगे, ओवरऑल दिस प्लेस होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि इस चीज़ की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सॉर्ट ऑफ template that you can adopt while describing your favorite place when it comes to the cue card।